رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ ویلکم بیک جی، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ انفارمیٹو ہمارا یہ سیگمنٹ ہے جس میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مختلف لوگوں سے، بہت سی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں اس سیگمنٹ میں۔ ہمارے آج کے جو گیسٹ ہیں ان سے میں آپ کا تعارف کروانا چاہوں گی۔ ہی از اے سیڈ فزیولوجسٹ، ہی از اے اسٹریس بایولوجسٹ اینڈ پروفیسر آف ایگرونومی۔ یہ سارے ورڈز میرے لیے بہت نیو ہیں اینڈ آئی ایم سپر ایکسائٹیڈ ٹو نو مور اباؤٹ اٹ۔ آج کے اپنے اس پروگرام میں ہم مورنگا کے بارے میں جانیں گے۔ ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ ہیں ڈاکٹر شہزاد بسرا صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب اتنی مشکل چیزیں، اتنا مشکل کام، یہ کیا صرف سننے میں مشکل ہے یا در حقیقت مشکل ہے؟ کوئی اس کے بارے میں ہمیں بتائیے پہلے تو۔ اصل میں ہر چیز ہوتی ہے، کسی چائنیز سے پوچھو نا کہ آپ کی زبان بڑی مشکل ہے، وہ کہے گا سب سے آسان زبان ہی ہے۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ جو جہاں پہ ہوگا اس کو اپنے ارد گرد کی چیزیں یوز ٹو لگتی ہیں، ایسے ہی ہے، دوسری زیادہ مشکل لگتی ہیں۔ صحیح۔ سو آپ ویسے تو بہت ساری چیزوں میں اسپیشلٹی رکھتے ہیں، بہت ساری دفعہ آپ کو ہم لوگوں نے مختلف چینلز کے اوپر بھی دیکھا ہے، مگر ہم تھوڑا سا بیسک انفارمیشن لینے کی کوشش کریں گے مورنگا کے بارے میں۔ مورنگا ہے کیا اور کیا اس کے فائدے ہیں؟ دیکھیں، انسان نے جب اپنی صحت کے بارے میں سوچا نا تو اس کو کچھ چیزوں کا اندازہ ہوا کہ ایک تو اچھی اس نے فوڈ لینی ہے، ٹھیک، اور اس فوڈ کے اندر کچھ چیزیں جو بنیادی اجزاء جسے ہم کہتے ہیں، جیسے عام زبان میں جسے ہم نشاستہ، لحمیات اور چربی کہتے ہیں، کاربوہائیڈریٹ، فیٹس اور پروٹین وغیرہ، کہ وہ لینے ہیں۔ پھر منرلز اور وٹامنز ہیں، اور اس کے لیے مختلف چیزیں ہیں جو وہ کھاتا ہے۔ اناج ہے، اللہ نے فروٹ، سبزیاں بنائی ہیں، گوشت بنایا ہے، ڈیری پروڈکٹ بنائی ہے، یہ فوڈ ہے، ٹھیک۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ پھر اس کو اندازہ ہوا کہ شاید اللہ نے ایسے پودے بھی بنا رکھے ہیں کہ جن کے اندر کوئی ہیلتھ بینیفٹس جو ہے نا عام غذا سے بھی زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، روٹین میں ہم کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، گوشت ہے، سبزیاں کھاتے ہیں، تو ان سے بھی زیادہ کچھ کے اندر نا غذائی اور طبی فوائد زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ بڑی اہمیت اختیار کر کے وقت کے ساتھ ساتھ پرانے زمانے پہ بھی جب جتنی بھی طب تھی وہ ہربس کے گرد ہی گھومتی تھی، ٹھیک ہے، تو جہاں بھی کوئی سیاح ہوتا تھا تو اس کے پاس یہی ٹوٹکے ہوتے تھے کہ فلاں پودے کے پتے کھا لو، فلاں کے بیج کھا لو، فلاں کا ایکسٹریکٹ کھا لو، فلاں کی یہ کھا لو، یہی ہوتے تھے۔ بالکل صحیح۔ لیکن جو جدید سائنس نے پھر کیا کہ ان کے اوپر ریسرچ کی، ریسرچ کرنے کے بعد دیکھا کہ یہ کیوں اتنے بہتر پودے ہیں، تو ان کو کچھ کو میڈیسن پلانٹ کا نام دے دیا گیا، کچھ کو فنکشنل فوڈز کا نام دے دیا گیا، کچھ کو سپر فوڈز کا نام دے دیا گیا۔ اچھا، ڈفرینٹ کیٹیگریز بن گئی۔ ٹھیک۔ اب میڈیسن پلانٹ ایسا ہے کہ میڈیسن پلانٹ ضروری نہیں وہ فوڈ ہو، اچھا، وہ خاص بیماری میں کھایا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، رائٹ۔ اب فنکشنل فوڈ وہ ہے کہ ہے وہ فوڈ ہے، آپ اسے کھا سکتے ہیں جیسے فوڈ کھانی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ میڈیسنل ویلیو اتنی ہے کہ کلینکلی وہ پروو ہو گئی کہ فلاں میڈیسن کے اگینسٹ کھائیں تو وہ فائدہ ہوگا۔ اچھا، اس کو فنکشنل فوڈ کہتے ہیں۔ فنکشنل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور سپر ایک میڈیکل ہو گیا، فنکشنل ہو گیا، اور سپر فوڈ جو ہے، سپر فوڈ پھر ایک مارکیٹ کی ٹرم آ گئی کہ ایک ایسی فوڈ جو کہ عام فوڈ سے زیادہ غذائی اور طبی اہمیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کھائیں، اس کو ایز اے فوڈ یوز کریں، آپ کو بیماریوں سے بھی بچائے گی۔ اور رسول نے کہا تھا نا کہ آپ کی اگر آپ کا جو کھانا ہے وہ آپ کی دوا نہیں ہے تو پھر آپ دوا کو کھانے کی طرح کھائیں گے۔ تو آپ اپنی جو کھانے کو اگر دوا کے طور پہ کھائیں تو پھر آپ کو بیماریاں نہیں آئیں گی۔ اچھا، یہ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کھانے کو آپ نے دوائی کی طرح کھانا ہے۔ تو ہم تو اتنے چسکے اور اتنے وہ لے کے وی ڈونٹ ریئلی کیئر، جب کھانا سامنے آتا ہے ہمارے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، وی ریئلی ڈونٹ کیئر واٹ وی آر ایٹنگ۔ اچھا، دیٹس سو انٹرسٹنگ۔ تو اس میں پھر جن پودوں نے بہت زیادہ اہمیت اختیار کی ان میں سے جیسے ایلو ویرا آپ نے سنا ہوگا، ماچا ہے ایک وہ سنا ہوگا،
जिनसिंग है, सही बोला बहुत ज्यादा, लेकिन उसके अंदर तुलसी, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा जो रिसर्च जिसके ऊपर भी वो मोरिंगा। ये जो आपने नाम लिए ये सुपर फूड में आते हैं? सुपर फूड्स हैं। ठीक हो गया। और किसी को आप एज ए टी पीते हैं, किसी को एज ए फूड खाते हैं, सारे ये ऐसे। एलोवेरा खाते भी हैं, पीते भी हैं, लगाते भी हैं, यूज भी करते हैं। ठीक हो गया। तो इसी तरह मोरिंगा ये ऐसा पौधा है जिसको आप खा भी सकते हो, लगा भी सकते हो, सूंघ भी सकते हो, लेप भी कर सकते हो, उससे मेडिसिन निकाल भी सकते हो। यस, और एज ए पेट भर के फूड भी खा सकते हो। अच्छा, तो ये लकीली ये पौधा जो ना ये हमारे खिते का है। ब्रिलियंट। ये पाकिस्तान का जो सदरन पंजाब है, जो शुरू होता है हमारा ये मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खां वाला, लिया का ये सारा इलाका, यहाँ से वो बेस करता है। ठीक है। इसको मुकामी तौर पे सुहांजना कहा जाता है, जिसको किसी जमाने में सुहांजने की मूलियों का अचार लोग खाया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, सुहांजना गोश्त बनाते हैं लोग, मैंने खाया हुआ है सुहांजना को, बट आई डिडंट नो कि इसको मोरिंगा जो है उसको कहते हैं। तो रवायती तौर पे हमारे खिते का ये पौधा है। अच्छा। लेकिन हमारे खिते में क्या किया जाता था कि इसको घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक, इसको सिर्फ वही ज़बान के चटखारे की जैसे बात की ना, हाँ। तो इसकी 2 डिशें ऐसी थी जिनका ज़बान का चटखारा बहुत अच्छा था। अच्छा, वो कौन सी थी? वो ऐसे था कि जो सदरन पंजाब के लोग हैं ना, तो उनके पास चूंकि इसके दरख्त होते थे, ठीक, तो दरख्त होते जो ही उसके वो फूल आने लगते थे, तो उसके जैसे कचनार हम खाते हैं ना, तो इस तरह जब उसके फूल अभी बनते तो उतार के ना, तो उसको वो सुहांजना गोश्त के साथ वो बनाते थे। ठीक। लेकिन वो करते क्या है, अब भी वो करते हैं, अभी भी बड़ी पॉपुलर डिश है। उसको 8-10 दफा बाज का धोते हैं, कई दफा 3-4 दफा तो कम से कम धोते हैं, बल्कि बॉयल करते हैं। अच्छा। तो बॉयल कर करके उसकी जो कड़वाहट निकालते हैं, दरअसल जब वो कड़वाहट निकालते हैं ना, तो इसकी 70-80% आप समझे कि जो इसके हेल्थ बेनिफिशियल अफादियत है वो खत्म हो गई। ठीक हो गया। इसको पका के खाते हैं, वो टेस्ट, फिर भी कुछ जिस तरह से हम सब्जियों के साथ भी यही करते हैं कि जो उसकी असल न्यूट्रिएंट्स हैं वो आप जाल लेके नहीं जाते, उनको भून भून के। बिल्कुल सही। और इसी तरह जो हमारा ये सेंट्रल पंजाब का हिस्सा है, साहिवाल, लाहौर, फैसलाबाद और ये इलाका, यहाँ पे लोग उसी की जो जड़ होती थी उसको सुहांजने की मूली कहते हैं, उसका अचार खाया जाता है, आज तक खाया जाता है। ठीक है। तो वो अचार भी अच्छी चीज है, लेकिन वो तो आप एक काश खानी, कभी कभार खानी। लेकिन दुनिया ने जब रिसर्च की सारी, और इसको फिर जो एलोपैथिक में और हर्बल मेडिसिन में पूरी दुनिया ने, वेस्ट ने जब इसके ऊपर रिसर्च की, तो उसका आया कि नहीं भाई, इसको अनकुक्ड खाएं तो उसके अंदर मेडिसिन वैल्यू ज्यादा है। और अनकुक्ड वो फूल तो खाए नहीं जा सकते, बहुत कड़वे हैं, जड़ भी बहुत सख्त नहीं खाई जा सकती। उसमें फिर सबसे ज्यादा ये आया कि इसके जो पत्ते हैं, उन पत्तों को ताज़ा या उनको ख़ास तरीके से खुश्क करके तो वो फिर खाया जाए। अच्छा, तो अब जो हम मोरिंगा जिसकी बात करने जा रहे हैं, जिसकी वैल्यू को समझा गया और अब उसको इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको आप कह रहे हैं कि फूलों को इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो बहुत कड़वे होते हैं, ऐसे ही है? नहीं, सारा ही मोरिंगा जड़ से लेके फूलों तक सारा ही अब मार्केट तो सेम ही अफादियत है उसके अंदर, थोड़ी डिफरेंट है। देखिए वही मैं कह रही हूँ ना कि अगर लीव्स हैं तो उसकी न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट होंगी, फूल की डिफरेंट होंगी, जड़ की मुख्तलिफ होगी, तो वो जरा थोड़ा वो उसको भी एक्सप्लेन। उसमें कि चूंकि इजी टू मार्केट, प्रोडक्शन ज्यादा थी लीव्स की, तो फिर लीव्स आप समझे कि 90% जो इसकी मार्केटिंग है वो लीव्स की होती है। ठीक हो गया, क्योंकि पत्ते ज्यादा है ना। बिल्कुल ठीक। फूल साल में एक दफा आने हैं, फली भी साल में एक दफा आनी है, जड़ भी पूरा पौधा जाया करना है, वो पीछे रह गए। ठीक, अब भी हो रहे हैं मार्केट, वो भी हो रहे हैं, लेकिन पत्ते ज्यादा हो रहे हैं। ऑल राइट, अच्छा ये क्यों हो रहे हैं? असल में अब आपका ये क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इसके फायदे हैं क्या? जी बिल्कुल, यही पूछना चाह रहे थे। जी, क्या फायदे? तो इसके ना जो एक तो होता है ना कि एक फोकलोर चलता है, एक इलाके में एक बंदा करता है, लेकिन जो बाकायदा साइंस ने साबित की ना चीजें, मैं चाहता हूँ वो बताता हूँ। ठीक है, देखिए जी, इसमें एक सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी ना न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कितनी ज़्यादा है कि इसको कंपेयर किया जाता है कि आपकी हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ विटामिन सी है। बिल्कुल। तो विटामिन सी का आम सोर्स आपके जहन में फौरन सिट्रस आएगा। बिल्कुल। तो बाई वेट अगर देखें तो सिट्रस से 7 टाइम्स ज़्यादा इसके पत्तों में विटामिन सी है।
अच्छा, जी, इतना ज्यादा। ओह, यानी दुनिया में टॉप ऑफ द लिस्ट अगर देखें ना किस चीज में विटामिन सी है तो मोरिंगा के पत्तों में। अच्छा अच्छा अच्छा, अब हम इस सुहाजना मोरिंगा दोनों चीज एक ही है, सेम ही है, हम मगर मोरिंगा ही यूज करेंगे। देखिए मोरिंगा इसलिए हम यूज करते हैं कि अब हम ग्लोबल विलेज है, पूरी दुनिया में हम बात करते हैं। सो मोरिंगा इसको सुहांजने को इंग्लिश में कहते हैं? वही है, ओके, ड्रमस्टिक ट्री भी कहते हैं, बेनाइल ट्री भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन मदर्स बेस्ट फ्रेंड ट्री भी कहते हैं, लेकिन जो अच्छा, वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं मदर्स बेस्ट फ्रेंड? बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स वैल्यू? नहीं, वो मलाया के अंदर इधर जो फिलिपाइन है ना, वहाँ द मोमेंट माँ अपने बच्चे को जो ब्रेस्ट फीडिंग पे आती है ना, तो वहाँ फिर वो पीना शुरू कर देती है मोरिंगा के पत्तों का सूप। अच्छा, और उससे फिर उसकी मिल्क क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत बढ़ जाती है। ओह, दैट्स ब्रिलियंट। माँ और बच्चे को तो ये एक फायदा हो गया, ये बहुत बड़ा फायदा, बिल्कुल बहुत बड़ा फायदा है। ये अच्छा, और इसके फायदों में अगर हम जानना चाहें तो? जी, फायदों में उसके जो फायदे आए हैं उसमें एक जो डायबिटीज है ना, उसके अगेंस्ट इसका जो फायदा आया है, ठीक है, लाइक अब पाकिस्तान में भी ज्यादा लोग जो ले रहे हैं ना, उसे ओबेसिटी के लिए और डायबिटीज के लिए ले रहे हैं ज्यादातर जो ले। अच्छा, ग्रीन टीज भी आती हैं इसलिए ग्रीन टीज की सूरत में मिले? हाँ, ऐसे ग्रीन टी भी आती है, ठीक है। डायबिटीज में इसके अंदर 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है जो कि डायबिटीज को शुरू करती है, ये उसको इंसुलिन ट्रिगर जो होती है, हाँ, तो वो जब बॉडी असल में इंसुलिन का ये सारी बीमारियों का आगाज तब होता है जब आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल ज्यादा होता है और इंसुलिन बनती भी है लेकिन सेल उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है, फिर टाइप 2 डायबिटीज, मोटापा, सब कुछ आता है। ठीक हो गया। एक तो ये उसको रोकता है, ऑलराइट। दूसरा ये कि जो पैंक्रियाज है जिन्होंने इंसुलिन प्रोड्यूस करना है, वो जब डैमेज होना शुरू होता है ना, तो ये उसका डैमेज रोकता है। ठीक है, जब मोरिंगा लेना शुरू कर देते हैं वो डैमेज रुक जाता है। सही। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल शुगर के साथ मिलके आर्टरीज में जमता है ना, ठीक है, तो ये उसको जमने नहीं देता। उसको क्यों कितनी बड़ी बात है ये, बिल्कुल सही, क्योंकि उसके अंदर अच्छा बैड कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करता है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फिर इसके अंदर ऐसे कंपाउंड है आइसोथायामीन वगैरह ना, कि जो कि आर्टरीज को खोल देते हैं, ठीक है, और जो जमा हुआ प्ला के निकल जाता है, ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। ठीक, एक इसका बहुत बड़ा फायदा है। ऑलराइट। दूसरा ये है कि एज ए ग्रीन टी और बाकी एज ए पाउडर जब इसको यूज़ करते हैं ना, तो आर्थराइटिस में और पेन में बहुत फ़ायदा है। क्योंकि इसके अंदर तकरीबन 38 ऐसे कंपाउंड हैं, ठीक है, कि जो दर्द ख़त्म करते हैं। अच्छा, यानी जो जोड़ों गिट्टों गोडों के जो दर्द हैं सब खत्म पूरे जिस्म की बॉडी में। ये तो आप इतने फायदे बता रहे हैं, मुझे तो लगता है सिर्फ मोरिंगा शुरू कर दो तो सारे मसले हल हो जाए। अच्छा, ऐसे ही है। ठीक। तो इन्फ्लेमेशन जो है ना, अब जो दर्द होती है ना, दर्द का एक बहुत बड़ी रीजन इन्फ्लेमेशन, ठीक है, सोजिश जिसे कहते हैं। ये दरअसल सोजिश क्या है, हमें चोट लगती है ना, तो जिस्म उसको रिस्पॉन्ड करके एज ए मैकेनिज्म, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इन्फ्लेमेशन करता है। ठीक है, लेकिन वो होती है टेम्परेरी। ठीक। अगर ये परमानेंट सोजिश होना शुरू हो जाए जिस्म के अंदर और इंटरनल ऑर्गन्स में हो जाए, वो फिर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का काज होता है। अच्छा, तो इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत सारा कंपाउंड है। ओके, एक्सीलेंट। तो उसमें जो हार्ट के, लिवर के और किडनीज के, बाकी जगह पे आर्टरीज के अंदर जहाँ से इन्फ्लेमेशन हो रही ना, ये उनको रोकता है, तो इन सारी बीमारी से बचाता है। सही। फिर इसका एक बहुत बड़ा जो फायदा है वो ये है कि स्किन के ऊपर, अच्छा, कॉस्मेटिक में चलिए खवातीन खुश हो जाएं। कॉस्मेटिक में ये बहुत ऊपर है। अच्छा, अगर आप कोई भी महंगा वाला कॉस्मेटिक देखें, आप ये कह रहे हैं कि कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है महंगा तरीन प्रोडक्ट ये अच्छा है। अच्छा, तो कोई भी कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट देखें ना, उसके अंदर आपको नजर आएगा BEN, बेन ऑयल। अच्छा, बेन ऑयल। बेन ऑयल, अच्छा, सस्ते वाले में नहीं होगा। ठीक है। अब बेन ऑयल पाकिस्तान वो क्या है, इसके बीज का तेल है। ओह, अच्छा, वो क्या है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी रिंकल, एंटी एजिंग है। ठीक है, नेचुरल। ये तो मुझे कोई जन्नत का पौधा लग रहा है डॉक्टर साहब। नेचुरल फ्रेशनेस, अच्छा, और स्किन रिपेयर कर देता है और एजिंग खत्म करता है, लाइंस को खत्म करता है। तो ये यूज होता है उसमें। अच्छा, बेन ऑयल। फिर इसके ये पत्तों का ना लेप बना के यूज किया जाता है। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर वो मास्क के तौर पे उसको ये फुलर अर्थ या जिसे मुल्तानी मिट्टी हम कहते हैं ना, उसके साथ मिक्स करके और साथ ये रोज वाटर के साथ मिक्स करके उसको ऐसे मास्क यूज किया जाता है। तो ये स्किन के ऊपर एंटी फंगल है, जो फंगस है उसको खत्म करता है, और ग्लो भी देता है, जो मेलानिन प्रोड्यूस होता है कलर वाला उसको कम करता है, धूप की वजह से रंग होता है। और तीसरी चीज ये है कि जो सेल डैमेज होते हैं ना, तो इसके अंदर एक हार्मोन है जिसको जिएटन कहते हैं, ठीक है, वो उसको रिपेयर कर देता है, वो स्किन ग्रो कर जाती है।
ओके ओके तो ये मैं फिर आर्थराइटिस में ये बड़ा सक्सेसफुल है। सही। ये मैंने आपको ना चंद एक बताया। तो मैं वही मैं देखना सोचना ये चाह रही हूँ कि आपने जो तमाम चीज़ें बताई हैं उसमें दिल की बीमारियों से लेके आर्थराइटिस की बीमारियों से लेके चेहरे के रिंकल से लेके मतलब हर चीज़ ने इसको ये कवर कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ़ायदे तो हमें पता चल गए, जन्नत का पौधा है ये फॉर श्योर। सो ये सवाल है कि इसको लेने के तरीक़ाकार क्या है? जी देखिए, सबसे आसान तरीका जो है ना, मैं पिछले 13-14 साल से लोगों को ये बता रहा हूँ। ठीक है। पहले तो ये कि हर घर में इसका पौधा होना चाहिए। देखिए मेरी विश क्या है, बिल्कुल ठीक है। हर घर में पौधा मतलब आई लिव इन एन अपार्टमेंट, तो वो पौधे में लग जाएगा या जमीन में ही लगाना पड़ता है? अच्छा, ये जमीन में लगेगा। बहुत बड़ा जिसमें कम से कम 25-30 किलो मट्टी हो तो फिर उसमें थोड़ा सा बनेगा। लेकिन ये इसको धूप चाहिए, ठीक है, और इसको जमीन चाहिए तो जमीन में इसको लगाया जाए। अब नियर बाई पार्क है, कुछ है, एक दरख्त हो तो एक कॉलोनी के लिए काफी है उसके लिए। अच्छा, अगर वो अब शहरों में जो कि थोड़ा प्रॉब्लम होता है, हर एक की एक्सेस नहीं है, जगह नहीं है, तो उसके लिए फिर ये कि अब मार्केट हो रहा है। अब मार्केट हो रहा है, बाजार में जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ इसकी मिलती है ना, वो शेड ड्राइड लीव्ड है। क्योंकि शेड ड्राइड लीव्स, अच्छा, यानी वो शेड के नीचे, ठीक हो वो एक मखसूस टेम्परेचर के ऊपर बनाते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर इसको शेड में ड्राई करते हैं, ताकि इसकी जो मैक्सिमम न्यूट्रिशन है वो रिटेन रहे। बिल्कुल ठीक है। अगर धूप में करेंगे तो वो खत्म हो जाती है। तो घरों में भी अगर कोई करना चाहे तो वो आप 50 से ऊपर टेम्परेचर नहीं। अब घरों में कैसे 50 करना है, बस छांव में करें। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमारे टेम्परेचर 50 तो कभी होता ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल। तो छांव में करें, छांव में वैसे टेम्परेचर कम होता है। तो जब हॉट एंड ड्राई वेदर हो, मतलब आजकल सर्दियां अभी खुश करना मुश्किल है, आप अप्रैल मई जून में पत्ते इसको खुश कर सकते हो। ठीक है। तो वो ड्राइड है, उसको फिर आपने पाउडर, अच्छा पाउडर कोई ज्यादा प्लेजेंट टेस्ट नहीं है। ठीक है। अल्लाह ताला ने इसको सब कुछ चीज दी है, टेस्ट इसके पत्तों को नहीं दिया। सही, वो ये तो आप वो वाली बात कर रहे हैं कि वो लड़की बड़ी सुगड़ होती है, बड़ी प्यारी भी होती है, ये मगर जब बोलती है ना तो बड़ा कड़वा बोलती है। तो ये वो वाली बात है। तो इसका ना जैसे आमतौर पे टेस्ट कड़वा है। हाँ, कड़वा कसैला सा टेस्ट है। अच्छा। और बल्कि इसका तो किस तरह जो पाउडर को कैसे खाया जाए? पहले बताओ, इसका पाउडर पड़ा होगा ना, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे ना हिना, मेहंदी जो मेहंदी है वो पड़ी हुई है, और स्मेल भी कड़े उसे मिलती जुलती है। अच्छा, ठीक हो गया। अब मेहंदी को खाने की कोशिश करें, आपको थोड़ा मुश्किल होगा, ज्यादा लोगों से ऐसे नहीं खाया जाता। तो उसके 2-3 तरीके हैं। ठीक। एक तो ये कि कुछ लोग कहते हैं हमें नहीं मसला, वो खाते हैं। ठीक है, वो 2-2 चम्मच खाते हैं। विल की बात है, क्योंकि नॉर्मल फिटनेस के लिए रोजाना 1 से 2 ग्राम यानी आधा चम्मच काफी है। ठीक है। लेकिन अगर आप कोई डिजीज है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, आर्थराइटिस है, कोई चीज है, तो फिर आपको 5 से 8 ग्राम लेना पड़ता है, यानी 2 चम्मच लेना पड़ता है। ठीक है। कुछ लोग करते हैं पानी में घोल के रात को रख देते हैं, सुबह पी लेते हैं। अच्छा, कुछ लेके दही के अंदर शामिल करके। सबसे जो पॉपुलर है, जो कि अब रमज़ान में भी हम लोगों को ये कहते हैं कि जब पुदीने की चटनी बनाते हैं ना, तो पुदीने की चटनी के अंदर अगर आप ताज़ा पत्ते हैं ना, तो ताज़ा पत्ते शामिल कर लें, वरना पाउडर उसके साथ शामिल कर लें। बट डॉक्टर साहब, पुदीने की चटनी तो आप इतनी नहीं खाते ना, इतनी ज़्यादा तो नहीं खाई जाती, तो उसमें पुदीने के पत्ते भी होंगे, धनिया भी होगा, और मोरिंगा भी अगर डालेंगे तो वो क्वांटिटी इनटेक कम होगी उस हिसाब से। आपने जो अपनी प्याली के लिए पुदीने की चटनी डाली, उसमें आप अपना पूरा 1 चम्मच डाल लें। बिल्कुल ठीक है। आप वो पैलेटेबल हो जाएगा, पर इजी हो जाएगा। सही। तो आप उसमें ये पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं, ताज़ा पत्ते, और आप ताज़े पत्ते भी डाल सकते हैं। ठीक हो। अच्छा, उसके बाद एक और जो फिर मार्केट की डिमांड के लिए लोगों के लिए फिर ये है, वो कैप्सूल आ रहे हैं इसके अंदर। अच्छा। तो वो कैप्सूल में फिल करके आते हैं, तो वो आप कैप्सूल के, वो इजी टू है। हाँ, तो वो तो बेस्ट है, वो बेस्ट है। लेकिन उसमें देखें ना, बहुत सारे लोग मेंटली तौर पे होते हैं कि हम हर्ब ले रहे हैं, नेचुरल ले रहे हैं और कैप्सूल में ले रहे हैं। हाँ। कुछ लोग नहीं लेते। हाँ। बाकी लोग कहते हैं नहीं जी, हमसे नहीं खाया जाता, कैप्सूल दे। बिल्कुल सही। अब मार्केट की डिमांड। दूसरा फिर ये कि इसकी ग्रीन टी भी आ रही। बिल्कुल, ग्रीन टी मैंने खुद देखी है। साशे वाली भी आ रही है। फिर ये कि और आपके पास पाउडर है या आपका ताज़ा पत्ते, आप उसकी घर में खुद ग्रीन टी बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है? पाउडर लेना ज़्यादा इफेक्टिव है, और वो कम से कम आप अगर आपको कोई मेजर एलिमेंट नहीं है, बीमारियों से बचना चाहते हैं। देखिए, मुझे 15 साल पहले प्री डायबिटिक था। ठीक है। मेरे घुटनों में भी दर्द थी। ठीक। मुझे कोलेस्ट्रॉल भी मेरा ज्यादा था। ठीक। मेरा अर्ली स्टेज ऑफ फैटी लिवर था। अच्छा। ठीक है। मेरा किडनी भी जो ना वो इफेक्ट था, गॉल ब्लैडर मेरा मिस हो गया, आईबीएस। आपको सारी बीमारियां थी मुझे। तो उसकी वजह से आप डॉक्टर बने थे, या डॉक्टर बनने के बाद बीमारी उसी वजह से बना? अच्छा। मैंने फिर मुझे पता चला
کہ یہ اس وقت میں جیسے عام لوگ کھاتے میں بھی یہ سب کچھ کھاتا تھا, ٹھیک ہے سر, یہ میں کرکٹر تھا, وہ کرتا تھا, یوگا کرتا تھا, اتنی ساری چیزیں آپ کو اکٹھے جب مطلب ہونی شروع ہوئی, سارا کچھ تھا مجھے, تو پھر مجھے پتا اچھا اس وقت, اب میں یہاں پہ رک کے دیکھنے والوں کو یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ جب اتنا کچھ آپ کو ہو, when you're going through so much, اتنی زیادہ آپ کے ساتھ بیماریاں لگی ہوں, تو دو طریقے ہیں آپ کے پاس زندگی کو دیکھنے کے. ایک تو یہ کہ آپ کہتے ہو اس سے بہتر ہے میں مر ہی جاؤں کہ اگر میں نہ کچھ کھا سکتا ہوں نہ کچھ پی سکتا ہوں. دوسرا طریقہ the one you chose that you said کہ نہیں مجھے اس کا کوئی حل نکالنا ہے. So that's what you came up with. 2-3 سال تک نا مسلسل میڈیسن کھا کھا کے تھک گیا. تو پھر میں نے ایک بڑے سیانے ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر احسان الحق, میں ان کا شکر گزار ہوں. صحیح. میں ان کے پاس گیا, انہوں نے مجھے پرسکرائب کیا تو میں نے ان کے سامنے پکڑ کے ایسے پھاڑ کے پھینک دیا. اچھا اچھا, وہ جیسے نیچرل ہوتا ہے کہ ہاؤ ڈیئر یو. میں نے کہا I'm پروفیسر آف فزیالوجی, مجھ سے, میں آپ کے پاس اس کی روٹ کاز کے لیے آیا کہ مجھے یہ کیوں بیماری ہے. ٹھیک. انہوں نے کہا یہ ساری بیماریاں دراصل ایکچولی بیڈ لائف سٹائل کی وجہ سے ہیں. ٹھیک. تو یہ ساری ریورس ہو سکتی ہے اگر آپ لائف سٹائل ٹھیک کر لو. ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا لائف سٹائل کیسے ٹھیک ہو رہا ہے. انہوں نے کہا پہلے یہ دیکھو کون سی فوڈ آپ کو سوٹ نہیں کرتی وہ نہ کھاؤ. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہیلدی فوڈ پہ سوری مجھے بتائیں کہ آپ کا ویٹ بھی گین تھا, آپ نے ویٹ نہیں تھا, صحیح, باقی سارے مسائل ایکٹیو میں ایسے ہی تھا, جو کہ کرکٹر بھاگتا وہ ویسے تھا, لیکن بیماریاں وہی تھیں. اچھا چلیں ٹھیک. تو پھر میرے پاس 2 حل تھے کہ یا تو میں بیٹھ جاتا دوائیوں کے اوپر آ جاتا جیسے سارے لوگ ہیں نارملی, مجھے ہائی بلڈ پریشر ہوتا, شوگر ہوتا, مجھے ہارٹ کا, میں گھٹنوں کا, سب کچھ بیٹھ کے, یہ مجھے 43 کی ایج میں مجھے ہو گیا تھا. اچھا 43-44 کی ایج میں یہ اس سارے معاملات ہو گئے تھے, اس وقت ہو گئے تھے پہلے. پھر میں نے ریسرچ بھی پھر سپر فوڈ کے اوپر کی, پھر میں نے اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا, اور الحمدللہ ناؤ ایٹ دی ایج آف 60 میں کوئی میڈیسن نہیں کھاتا. At the age of 60 you are 60 الحمدللہ میں کوئی میڈیسن نہیں کھاتا. اچھا, صرف چینج آف لائف سٹائل کی وجہ سے. اور اس میں کیا چینجز آئی آپ کے صرف فوڈ کے علاوہ, اور کیا چینج آیا فوڈ بیس میجر؟ ہاں 3 چیزیں ہیں. ہاں جی. نمبر 1 فوڈ. ٹھیک. بیڈ فوڈ چھوڑ دی ساری میں, وہ اگلا ہم پروگرام کریں گے بیڈ فوڈ کون سی ہے اور ہیلدی فوڈ کون سی ہے. ایک وہ ہیلدی فوڈ کے اوپر آ گیا میں, ٹھیک ہے. اور ہیلدی فوڈ کے ساتھ ہربز جیسے مورنگا, بہت بڑی مورنگا, کنوا, چیا, یہ شامل ہے. کنوا کا سیلڈ بھی بنتا ہے نا, وہ بھی میں نے پاکستان میں لے کے آیا. اچھا ایکسلنٹ. دوسری چیز ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی. ٹھیک. فزیکل ایکٹیویٹی میں ہر ہفتے پہاڑ چڑھتا ہوں آلموسٹ, یا مہینے میں 1 دفعہ لانگ ٹریک ضرور کرتا ہوں. ڈیلی واک کرتا ہوں, یوگا کرتا ہوں, ایکسرسائز کرتا ہوں, کرواتا ہوں. ٹھیک ہے. صحیح. تیسری چیز میں خوش رہتا ہوں. وہ کیسے خوش رہتے ہیں؟ میں رہتا ہوں خوش. اچھا بس وہ طریقے کار ہے خوش رہنے کے. یہ تینوں چیزیں ہیں ہیلدی لائف سٹائل میں, یہ تینوں چیزیں. سو جی سب سے پہلے ہو گیا فوڈ, دین ایکسرسائز, اینڈ یو اسٹے ہیپی, تھنک پازیٹیو. یس, یہ 3 چیزیں ہیلدی لائف سٹائل کا پارٹ ہے. اور وہی جب میں نے اپنے اوپر اپلائی کیا, ہو گیا, پھر میں لوگوں کو بتانا شروع کر دیا. ٹھیک. ریسرچ بھی اسی کے اوپر شروع کی, پبلسائز بھی وہی شروع کی. تو جب آپ نے یہ ہیلدی لائف سٹائل کیا, مورنگا کا استعمال آپ کیسے کرتے تھے؟ مورنگا کا استعمال شروع میں, پھر میں نے فوراً پودے اگائے, اور پورے پاکستان میں پودے ڈسٹریبیوٹ کرنے شروع کر دیے, پلانٹیشن شروع کر دی, سیڈ ڈسٹریبیوٹ شروع کر دیا. خود میں روزانہ 1 مٹھی پتے جو ہے نا وہ میں سیلڈ کے ساتھ ایسے کھا جاتا تھا. اچھا. اور اب بھی جب دل کھا رہا تھا, پھر میں پاؤڈر بنا کے اس کو کبھی کیپسول کی شکل میں, کبھی ایسے. پچھلے میں 13-14 سال سے شاید ہی کوئی دن ہو جس دن میں مورنگا نہیں کھایا. کیا کہنے, واو دیٹس سو امیزنگ اینڈ انسپریشنل. اب ڈاکٹر صاحب ٹورڈز دی اینڈ آئی جسٹ وانٹ یو ٹو سے, رمضان کا مہینہ ہے, سحری افطاری ہم کر رہے ہوتے ہیں اور کتنا کیسا فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں, تو آپ جانتے ہیں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے مورنگا کا رمضان میں. اچھا, آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ مورنگا کے کتنے فائدے ہیں. جی. اب اس کو یوز کرنا ہے تو سحری میں کیسے کرنا ہے اور افطاری میں کیسے کرنا ہے. بالکل. سب سے پہلے میں افطاری میں آؤں گا. اچھا. افطاری میں ایک تو جو پودینے کی چٹنی بنا رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, آپ نے جو بھی جس کے لیے بھی بنائی ہے وہ علیحدہ, چاہے پکوڑوں کے لیے وہ علیحدہ سٹوری ہے. اس کے اندر مورنگا کے تازہ یا اس کا پاؤڈر ضرور شامل کرنا. ٹھیک ہو گیا. دوسرا یہ جو آپ ڈرنک بناتے ہیں نا, تو دنیا میں اب جو ایک بڑا پاپولر ڈرنک ہے نا وہ مورنگا ڈرنک ہے. اچھا. وہ کیسے بنایا جاتا ہے کہ مورنگا کے تازہ پتے اگر آپ کے پاس ہیں ٹھیک ہے, ورنہ تھوڑا سا پاؤڈر لے کے اس کو کیا جاتا ہے, تھوڑا سا پودینے کے پتے, فریش پتے, ٹھیک ہے, یہ ڈرائی نہیں لینے. جی. پنچ آف سالٹ اور پنچ آف کالی مرچ,
इनके साथ पानी के अंदर डाल के उसको खूब ब्लेंड किया ठीक जाता है। है। साथ उसके अंदर मीठा करने के लिए आप स्टीविया डाल ठीक है। लें, खजूर डाल लें, ठीक है। अंजीर डाल लें, शहद डाल लें, ठीक है। उसको भून लें सही। और उसका ड्रिंक बना लें। ओके, तो वो लेमन डाल लें साथ, वो एक कंप्लीट है कि आपने Excellent. सारा दिन में जो भी उल्टा सीधा इट्स लाइक खाया ना, मोरिंगा मार्गरीटा। यस हाँ, ये एक्चुअली ये मैं इसको एक्चुअली मोरिंगा मार्गरेटा ही कहता अच्छा, हूँ। जी, जी, that's तो आप great. सही पहुंचे। बिल्कुल अच्छा, ठीक। दूसरा ये कि अगर ये आम लोगों के लिए ये काफी है इतना, ठीक है। लेकिन अगर किसी को ये फैटी लीवर का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का है, शुगर का है, या बाकी एलिमेंट्स, ठीक। ये सारी चीजें हैं उसको ना, तो उसको चाहिए कि सुबह उठ के जब पहले सहरी के टाइम सुबह उठता है ना, तो वहाँ 1 या 2 जो चम्मच है मोरिंगा के पाउडर के या कैप्सूल के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में कम से कम 5 ग्राम की उसकी डोज ले, ठीक। वो जरूर ले ले। और बाकी शाम को जो मैंने सहरी में बताया, अफ्तारी में बताया, बाकी वो ले। बिल्कुल तो ठीक ये है। आपकी रूटीन में शामिल कर दे। पकौड़ों के अंदर भी मोरिंगा डाला जा सकता है, बिल्कुल रोटी के अंदर मोरिंगा डाला जा सकता है। जिन लोगों को ब्लॉटिंग का और थोड़ा दूसरा मसला बनता है, तो वह मल्टीग्रेन जो आटा भी एक मार्केट है, उसके अंदर भी मोरिंगा है। ठीक है। तो उसमें आम आटे के अंदर भी आप थोड़ा मोरिंगा का पत्ते या मोरिंगा का सफूफ डाल लेंगे ना, ठीक है। तो उसमें जो हैवी पन है वो कम हो जाता नहीं है। होगा। एक्सेलेंट, ज़बरदस्त। तो आप क्या आखिर में पैगाम देना चाहेंगे कि किस तरह से हम इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें? क्योंकि फूड के हवाले से तो हमारा एक अलहदा प्रोग्राम है जिसमें हम बताएंगे कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना, और सुपर फूड एंड ऑल दैट, बट मोरिंगा के हवाले से आखिर में आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से शामिल किया जाए? देखिए, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि अपने आप को ये जो सारी बीमारियां जिसमें पूरा पाकिस्तान भरा हुआ है, तो अगर आपने सिर्फ मोरिंगा खा के ठीक होना है, तो आपसे ज्यादा भोला कोई नहीं है। भोला। यू हैव टू चेंज लाइफस्टाइल। राइट। अगर आपने स्किन अच्छी करनी है, आपकी फूड अच्छी करे, तो अंदर से ग्लो करें, सही। फिर मास्क लगाएं, सही। फिर ठीक होगा। ठीक। अगर सिर्फ क्रीम लगा के आना है, शॉर्टकट्स में नहीं जाएं। नहीं, शॉर्टकट्स में जिंदगी जो है ना, वो लाइफस्टाइल ऐसे नहीं है। ठीक। पॉजिटिव लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, और उसमें मोरिंगा आपको कदम कदम पे मदद करेगा। जबरदस्त। फैटी लिवर ठीक करेगा, Excellent. आर्थराइटिस ठीक करेगा, दर्दें कम करेगा, आपका ब्लड प्रेशर ठीक करेगा, सब। लेकिन आप उसकी सपोर्ट में फूड भी तो ठीक ले रहे हैं। एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली। हर बंदे को लेना चाहिए। Excellent. मैं कहता हूं दुनिया में 2 बंदे हैं, सही। एक वो जो मोरिंगा यूज करते हैं, दूसरे वो जिन्हें पता नहीं मोरिंगा के फायदे हैं। सही। तीसरा कोई बंदा नहीं होगा। नहीं नहीं बिल्कुल सही, एक्सीलेंट, सुपर्ब। इट वाज लवली नोइंग अबाउट मोरिंगा फ्रॉम यू डॉक्टर साहब। और यकीन कीजिए, आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी, सारी बातें तो डॉक्टर साहब ने कर ली, मैं यही कहना चाहूँगी कि जितनी ऑथेंटिसिटी, जितनी पॉजिटिविटी और एनर्जी के साथ डॉक्टर साहब ने ये सारी बातें बताई हैं ना, आई एम इम्प्रेस्ड। और आज मेरे घर पे बहुत अरसे से ग्रीन टी पड़ी हुई थी मोरिंगा की, वो मैं जाके पीऊँगी आफ्टर ऑब्वियसली रोज़ा खोलने के बाद। तो जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये खैर लोगों में तकसीम करने के लिए अल्लाह आपकी ज़िंदगी में भी आसानी करे जी। यहाँ पे रुकेंगे, हम एक छोटे से वक्फे के लिए, इंशाल्लाह वापस आएंगे। एक इंस्पायरिंग स्टोरी हमारे साथ होगी, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। रमज़ान इल्म है, रमज़ान